Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 57 for the topic body fluids and circulation. Now we have been learning regarding the composition of blood. We already studied in the previous videos, you may watch, that plasma, that is the fluid matrix of the blood. Then we have seen in detail the formed elements like erythrocytes or RBCs and then leukocytes. Not only that, we have seen also the types of leukocytes. Now we have to learn the third type of the formed elements of the blood, and they are known as platelets. Very important. I told you earlier that each and every component of our blood is very valuable for our survival. ऐसा कोई ऊंचा कोई नीचा ऐसा नहीं है. All are equally important. जितना प्लाज्मा का इंपॉर्टेंस है उतना ही इरिथ्रोसाइट्स, उतना ही ल्यूकोसाइट्स. अभी प्लेटलेट्स भी उतने इंपॉर्टेंट है. द प्लेटलेट्स आर पर्टिकुलरली कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स आल्सो. थ्रोम्बोस का मतलब आता है क्लॉट. थ्रोम्बोस का मतलब क्या है? क्लॉट. सो दे आर हेल्पिंग इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द इंजुरी प्लेस. जब भी कभी इंजुरी हो जाती है हमारे शरीर को कह रहा हूं मैं, मन को नहीं, दिल को नहीं. सो व्हेनेवर दैट, दिल को चोट बहुत लोगों को लगती है, पर एक्चुअली सपोज इन सम एक्सीडेंट देयर और सम माइनर पर्टिकुलर काइंड ऑफ द इंजुरी देयर, द ब्लड कैपिलरी गेट रप्चर्ड, ब्लड वेसल गेट रप्चर. अभी शेविंग करते करते भी हो जाता है, कभी कभी ब्लेड लग जाता है, isn't it? Then what happened there? Bleeding immediately starts. Because all over the body, the blood is flowing to the closed tubes, you know. So when that tube will get open, the blood will leak out. And that is called as bleeding. पर अगर ये bleeding naturally stop ना, अभी हम लोग तो उसका bandage करते हैं immediately. But nature has also given one very valuable process there called as clotting of blood. A complex series of biochemical reactions occurring at the wound place very quickly. वो फायर ब्रिगेड वाले तो भी बहुत देर से आते हैं कॉल करने के बाद, isn't it? पर ये इमीडिएट वहां पे जहां पे इंजुरी हो गई है, immediately the action starts and then the process occurs in a chain, in a series, एक के बाद एक, and finally the bleeding is stopped. They're called clotting of blood, they're called the coagulation of blood. तो उसमें अहम भूमिका निभाने वाले जो सेल्स है, they are the platelets. They are called as the blood platelets or thrombocytes. If thrombocytes or blood platelets are not there, then clotting of blood would not be possible at wound place. और wound क्या खाली बाहरी होता है ऐसा नहीं, कभी कभी शरीर के अंदर भी हो जाता है. अपेंडिक्स फूट गया, बहुत बार हम देखते हैं. Then bleeding starts. So particularly bleeding may take place internally also. तो वो जो है that is particularly stopped by these series of reactions brought about by the secretions produced by these cells. अब इसके बारे में डिटेल्स हम लेंगे. They are actually the cell fragments, smallest kind of the blood cells है वो. They are the cell fragments actually. They are spindle cells. They are also called as the spindle cells because they are of spindle shape, biconvex. ये छोटे छोटे ऐसे biconvex cells है, isn't it? Spindle shape like that. And then they are biconvex. Their size is near about 2.5 to 5 micron. 1 micron is 10 to the minus 3 millimeter, isn't it? 2 into 10 to the minus 3 millimeter is the size of that. Very small, spindle shaped, biconvex. They are cell fragments. Actually, they are formed from megakaryocytes. ये सेल का नाम आप ध्यान में रख दो. Which among the following are produced from megakaryocytes? Correct answer will be platelets या thrombocytes. Okay, ये megakaryocytes, they are very important cells of the bone marrow. कहाँ रहता है bone marrow? In our long bones. ये long bone जो है वो हमारे हाथ में होंगे, ह्यूमरस, या पर्टिकुलरली हमारे थाई में जो है फीमर, या टिबियो फिबुला जो हमारे शैंक में है, तो दैट लेग्स में. सो दैट पर्टिकुलरली आर द लॉन्ग बोन्स. तो लॉन्ग बोन्स के अंदर जो कैविटी होती है उसका भी यूज नेचर ने किया है.
एंड दैट कॉल्ड द बोन मैरो कैविटी। वहां पर भी कुछ टिश्यू रखा है छुपा के, और वहां पे भी कुछ चलती है एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, लाइक दैट। वंडरफुल वंडरफुल प्लानिंग। कौन सा एक एक इंच का जगह भी वहां पे उन्होंने नेचर ने वेस्ट नहीं किया है, उसको यूज किया है। ओके, सो मेगा कैरियोसाइट्स आर द सेल्स विच आर प्रोड्यूसिंग थ्रोम्बोसाइट्स। काउंट कितना है उनका देखो, 1.5 to 3.5 lakhs per cubic millimeter of the blood। 1.5 to 3.5 लाख। अभी तीनों का कंपेयर करो, इरिथ्रोसाइट्स का, डब्ल्यूबीसी का और इसका, and you'll know that they are in the middle number। okay, तीनों का learn by heart करो। 1.5 to 3.5 lakhs per cubic meter of blood। then they are involved in the clotting of blood or coagulation of blood। ये clotting of blood में involve है, जो मैंने पहले भी बता दिया आपको। अब देखो उनका लाइफ स्पैन है only 5 to 10 days। again and again they are produced new। okay, देन अनदर, ये तीन टर्म्स भी ध्यान में रखो, ये बुक में नहीं है हमारे एनसीईआरटी के, पर आउट ऑफ द बुक कुछ क्वेश्चन अगर आए तो हमें मालूम होना चाहिए। जैसे हमने कहा था इरिथ्रोपोएसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, या ल्यूकोपोएसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, वैसे थ्रोम्बोपोएसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। Formation of platelets, formation of thrombocytes is called as thrombopoiesis। Very simple। Then thrombocytosis is the increase in number of thrombocytes than this normal। ये नॉर्मल फिगर से अगर नंबर ज्यादा हो गया तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और तीसरा टर्म है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, that whenever the decrease in number of thrombocytes is there, then that is called as what? Thrombocytopenia। तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। वेरी सिंपल। तो ये तीनों भी टर्म्स अगर एक्स्ट्रा में लर्न किए तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पर अगर एक आध बार आ गया एमसीक्यू तो हमें आंसर आना चाहिए, इसके लिए मैंने दिया है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, वो तो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। ओके, वो यानी एनसीईआरटी बुक में दी नहीं, पर इसके भी बारे में मैं थोड़ी बात आपको करता हूँ। whenever injury takes place at the wound site, immediately that blood platelets come into the role। they secrete variety of the substances and that lack of them causes clotting disorder। ये तो मैंने बता दिया आपको, अगर ये नहीं है तो क्लॉटिंग ही नहीं होगा। अब ये प्रोसेस में क्या करते हैं देखो, these cells release थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक सब्सटेंस को रिलीज करता है एट द वुंड प्लेस, अगर वुंड हो गई है तो, नहीं तो ऐसे नहीं। ओके, अगर रिलीज भी कर दिया एक आध बार ब्लड में तो हिपैरिन नाम का जो सब्सटेंस बेसोफिल ने तैयार किया है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, नाउ थ्रोम्बोप्लास्टिन इज देयर कमिंग इन द एक्शन, इट एक्ट्स ऑन, ये किसके ऊपर एक्ट करता है? प्रोथ्रोम्बिन विच इज इनएक्टिव एंजाइम present in the plasma and converts that into the thrombin which is active। okay, pro यानी पहले वाला, prothrombin is inactive, that is converted into the active thrombin by this thromboplastin। और ये active thrombin जो क्या करता है, it converts the in that particular inactive fibrinogen which is soluble into the insoluble fibrin। okay, that fibrin PPT is formed actually, और ये फाइब्रिन का नेटवर्क बन जाता है वुंड के ऊपर, एंड सम डेड सेल्स गेट एंटेंगल्ड इन दैट, तो वो पूरा कवर कर देता है उस वुंड को, एंड देन द ब्लीडिंग स्टॉप्स। फिर थोड़ा येलोइश फ्लूइड थोड़ी देर बहता है, सेरम कहेंगे हम उसे, प्लाज्मा का थोड़ा पार्ट, बाकी वो ब्लीडिंग पूरा बंद हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द क्लॉट। तो एक क्लॉट फॉर्मेशन में प्लेटलेट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है देखो, बिकॉज प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूसिंग दैट प्रोथ्रोम्बिन एंड दैट पर्टिकुलरली थ्रोम्बोप्लास्टिन,
एंड दैट इज कन्वर्टिंग प्रोथ्रम्बिन इनटू द थ्रम्बिन. प्रोथ्रम्बिन तो प्लाज्मा में है. कैल्शियम आयंस, विटामिन के, ये भी प्लाज्मा में है. कैल्शियम आयंस लगता है, विटामिन के लगता है, और कुछ फैक्टर्स लगते हैं कोआगुलेशन के लिए, दैट पर्टिकुलरली फाइब्रोजिन, ये सब प्लाज्मा में है. पर जो मेन उसको ट्रिगर करने वाला है थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो कौन छोड़ देता है? दैट इज thrombocytes or blood platelets. So I am sure you have understood all the part there. Composition of blood पूरा अच्छी तरह से मैंने कवर किया है. तो पिछले कुछ वीडियोस अगर आप देखेंगे 3-4, तो बिल्कुल आपका ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड का आर्टिकल बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा. So do like and share this video to your friend circle. We shall meet again in the next lecture. Till then, take care. Thanks a lot.